slope of in the after direction, the slope of the keel is more than the slope of the seabed. Correct बेटा? Yes sir. Yes sir. अगर शिप की ट्रिम 1 मीटर बाय स्टर्न होती तो क्या होता? सर तो तब पूरा ओवरऑल सेट करता सर। टच जी, करता है। तो पूरा का पूरा एक साथ बैठता। करेक्ट? यस सर, फॉरवर्ड और आर्ट दोनों क्योंकि क्योंकि फिर शिप की कील जो है सी बेड के पैरेलल हो जाती अगर शिप की ट्रिम 1 मीटर करते तो। यस करेक्ट बेटा? Yes sir. ओके। अगर शिप की ट्रिम आधा मीटर बाय स्टर्न होती तो कौन सा पॉइंट पहले टच करेगा? फॉरवर्ड वाला करता सर। फिर फॉरवर्ड बाव पहले टच करेगा। करेक्ट बेटा? यस सर। सो इज इट क्लियर नाउ हाउ टू फिगर आउट? क्योंकि कल को मैं वैल्यूज चेंज कर दूं फिर ये मत कहना ना कि हमने तो स्टर्न टच करा दिया था, बिकॉज दिस इज हाउ वी वर टॉट. So now is it clear how to figure out which point of the ship is going to make first contact, right guys? Yes sir. So in this case you are absolutely correct. It is the stern of the ship which will make first contact with the seabed, because over the one ship length the slope of the keel, the inclination of the keel is more than the inclination of the seabed over the same length, right beta? यस Okay. So जब अब आफ्ट में कितनी डेप्थ होगी? जब क्वेश्चन में कहता है इट रन्स अग्राउंड लाइटली, सो ये लाइट ग्राउंडिंग किस डेप्थ पे होगी और कौन से पॉइंट की डेप्थ की बात कर रहे हैं? अगर आफ्ट पहले टच होगा तो पहले ग्राउंडिंग आफ्ट में ही होगी। करेक्ट बेटा? Yes sir. तो लेवल फॉल होता जाए, फॉल होता जाए, फॉल होता जाए, आफ्ट में कितनी डेप्थ होनी चाहिए जब आफ्ट सी बेड को टच करेगा? सर 8 meters. 8 meters. When the depth aft becomes 8 meters, because the draft aft is also 8 meters, the stern will make light contact with the seabed. Correct beta? यस सर। Yes sir. उस टाइम फॉरवर्ड में डेप्थ कितनी होगी? उस टाइम फॉरवर्ड में डेप्थ कितनी होगी? सर 3.2 डेप्थ, ध्यान से सुनो, सवाल सुना करो। Depth, फॉरवर्ड sir, में 7 हाँ, meter होगी सर। 7 meters. 7 And meters. हाँ, and what will be the draft forward at that point? So aft में डेप्थ भी 8 मीटर हो गई, आफ्ट का ड्राफ्ट भी 8 मीटर हो गया, लाइट टच हो गया। इस टाइम फॉरवर्ड में तुमने कहा है डेप्थ 7 मीटर होगी और फॉरवर्ड ड्राफ्ट इस टाइम कितना होगा? फॉरवर्ड ड्राफ्ट तो सर वो 4.8 ही रहेगा ना सर। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। सो लाइट ग्राउंडिंग में इस टाइम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P at this point when the light grounding takes place? What will be the value of upthrust? Will there be any upthrust? Light ground पे would there be any upthrust? No sir. Because forward draft अभी भी 4.8 है, aft draft अभी भी 8 मीटर है, that means there is adequate buoyancy to support the displacement. Correct बेटा? Yes sir. Yes sir. Okay. Now as the level falls, which point will start experiencing the upthrust? Aft में जो depth 8 थी उससे level और नीचे आएगा तो upthrust कहाँ act होगी? आप में ही आएगा सर अपट्रस्ट। Okay. उससे क्या होगा? ट्रिम चेंज होना शुरू हो जाएगी। हाँ सर। Yes sir. So this 3.2 meters by stern trim will start reducing, correct? Yes sir. When do you think would the vessel sit for the first time all along the length? When would it just sit all along the length? सर ट्रिम 1 मीटर रह जाएगी सर। जब ट्रिम 3.2 meters by stern से reduce होके 1 मीटर हो जाएगी तो मेरा जहाज पूरा आगे से पीछे तक बैठ जाएगा पहली बार। करेक्ट बेटा? Yes sir. है ना? Yes sir. Yes. That means the change in trim, how much is the change in trim required to make the vessel sit overall? 2.2 by 3.2 So 3 point, okay, 3.2, the 2.2 meters by head is the change required for the vessel to sit overall, right? Yes sir. तो अगर मुझे trim, एक्सटर्न होगा ना सर ट्रिम। बेटा मेरा क्वेश्चन है, what is the change in trim required for the vessel to sit overall? ओके।
ठीक है सर. if you are saying that she will sit with 1 meter by stern, तो change in trim is only 2.2 meters ना बेटा. 3.2 से change 2.2 हो जाएगा तो residual will be 1 meter by stern, right? Yes sir. So when the change in trim is 2.2 meters by head, that is the time you will have the situation which the question part A wants. When she just sits overall, correct बेटा? Yes sir. तो यहां पर हम अब थ्रस्ट निकाल पाएंगे. टीसी हमें पता है, AFMC हम निकाल सकते हैं इनिशियल हाइट ड्राफ्ट निकाल के. तो क्या हम ये वैल्यू P की निकाल पाएंगे व्हेन शी सिट्स ओवरऑल? Yes sir. यस और नो? निकल जाएगी सर. Yes. अगर मेरे पास P आ जाएगा तो मैं A B C में से कौन सा क्वेश्चन कर सकता हूं फिर? B कर सकते हैं, करेक्ट बेटा? Yes sir. वेरी गुड, शाबाश. B कर सकते. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. W माइनस P के लिए KM निकाल के बाकी लॉसेस लगा देंगे एंड विल गेट द वर्चुअल GM व्हेन शी जस्ट सिट्स ओवरऑल, राइट बेटा? Yes sir. सो क्वेश्चन पार्ट B हम कर सकते हैं. दूसरी बात, पार्ट A ही सेज द ड्रॉप इन वाटर लेवल एट विच द शिप विल सिट ओवरऑल. अब बेटा ये बताओ मेरे को कि चलो पहले लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. प्लीज गेट द इनिशियल हाइट ड्राफ्ट. आई विल एक्सप्लेन टू यू एज आई प्रोसीड फर्दर. प्लीज गेट द इनिशियल हाइट ड्राफ्ट. गेट द इनिशियल. ये वैल्यूज लिख लो, बार बार मैं क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगा. ड्राफ्ट फॉरवर्ड आफ्ट kg 1300 FSM 1 meter sounding aft is 1 meter more than the sounding forward. ये वैल्यूज तुमने लिख लिए. प्लीज कैलकुलेट द इनिशियल हाइट ड्राफ्ट. ये देखो जो मैंने तुम्हें अभी समझाया था वो डायग्राम में देखो. इनिशियली इस कंडीशन में, ये कंडीशन है लाइट ग्राउंडिंग की. इस लाइट ग्राउंडिंग पे तुम मुझे बताओ पहले, लेट्स डिस्कस ऑन दिस डायग्राम. व्हाट डू यू थिंक विल बी द ड्राफ्ट aft and depth aft when she lightly grounds? What will be the draft and depth aft beta? सर अभी तो 8 मीटर है. 8 meter. 8 मीटर, वेरी गुड. वही तो पूछ रहा था मैं तुमसे. ठीक है, draft aft is 8 meter, draft depth aft is also 8 meter. In this condition, can you comment anything on the depth and draft forward? So forward draft will be same 4.8 and depth will be 7 meters. Okay, agreed. This is the condition where the she runs aground lightly. In this condition, there is no upthrust in existence, correct beta? Yes. UKC has become 0 because stern has made contact, but there is no upthrust. Very good. Now, if the tide falls to, let us say, by a certain amount, and depth becomes X meters, X is less than 8, so X is not more than 8. If the depth falls to X meters, right, and then will you be in a position to talk about any of the drafts? ड्राफ्ट आगे पीछे कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि ये ड्राफ्ट उतना ही होगा. इफ द डेप्थ रिड्यूसेस फ्रॉम 8 meters टू सम x मीटर, तो कोई ऐसा ड्राफ्ट है जो तुम बोल पाओगे कन्विक्शन के साथ ये ड्राफ्ट उतना ही होगा? सर फॉरवर्ड वाला तो चेंज नहीं होगा. Forward वाला मैंने ये तो नहीं पूछा कौन सा चेंज नहीं होगा. मैंने पूछा कैन यू कमेंट ऑन एनी ड्राफ्ट व्हिच यू कैन से विद कॉन्फिडेंस कि ये इतना ही होगा. फॉरवर्ड से. फिर क्वेश्चन को उल्टा समझिए, उल्टा जवाब. इज देयर एनी ड्राफ्ट ड्राफ्ट सर. ड्राफ्ट आफ्ट कितना हो जाएगा? draft of 8 minus 8. इक्वल टू डेप्थ ऑफ वाटर सर. जितना डेप्थ होगा उतना. अगर डेप्थ x मीटर है तो ड्राफ्ट आफ्ट x मीटर हो जाएगा, करेक्ट? Yes. यस सर. अच्छा, आप बोलो तुम फॉरवर्ड के लिए क्या बोल रहे थे? Can I comment or can I not comment on forward draft? So depends x is less than 4.8 or. Correct. No, it can be more than 4.8 also because TC भी तो एक्ट होगा बेटा. TC का TF कंपोनेंट भी तो लगेगा.
Yes, sir. तो जरूर वो 4.8 से कम नहीं होगा, वो आगे टीसी लग के बढ़ भी जाएगा आगे, करेक्ट? Yes, sir. ओके, पी विल कॉज टीसी ऑल्सो, टीसी विल हैव अ इंक्रीजिंग इफेक्ट, प्लस टीएफ होगा ना आगे, सो मीन राइज प्लस होगा, टीएफ माइनस होगा, करेक्ट, बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट. Okay, so now if the depth comes to, let us say, depth comes to x meters, if the depth comes to x meter, do you agree that the draft will also become x meters, correct? Yes, sir. And now ये मैंने critical instant word यहाँ fit नहीं है, this is not technically correct, मैंने जानबूझ के लिखा just to make it easier for you to understand. The vessel has just, she is sitting for the first time overall, और जब ये पूरा का पूरा ओवरऑल पहली बार बैठा, उस टाइम हम कह रहे हैं कि आफ्ट में डेप्थ x मीटर थी, तो आई एम श्योर यू विल एग्री कि आफ्ट में ड्राफ्ट भी x मीटर होगा. एग्रीड गाइस? Yes, sir. अगर इस टाइम पे at this point when she sits overall, can you comment anything on the depth and draft forward? Both, any one of them. What do you think will be the depth forward now? Sir, x plus 1 meter. X plus 1 या x minus 1? Sir, x minus 1 meter. X minus 1 meter will be the depth, and what will be the draft forward when she sits overall at x meters depth? X minus 1, because आगे में भी जब बैठ गया, कांटेक्ट हो गया, तो डेप्थ और ड्राफ्ट बराबर ही होंगे ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Correct. So do you agree with this, that draft forward and depth forward will be both x minus 1 meters when she sits overall, correct? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले वाले पार्ट के लिए वो कहता है व्हाट इज द ड्रॉप इन लेवल फ्रॉम दिस कंडीशन, फ्रॉम लाइट ग्राउंडिंग, व्हाट इज द ड्रॉप इन लेवल फ्रॉम लाइट ग्राउंडिंग फॉर द वेसल टू रीच दिस कंडीशन ऑफ सिटिंग ओवरऑल, करेक्ट? दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट बेटा? Yes, sir. Yes. तो अगर मैं ये x की वैल्यू निकाल पाऊं किसी तरह से, व्हाट इज x? x is the depth aft, x is the depth aft when she sits overall for the first time, am I right? Yes, sir. Yes. If x is the depth aft, then looking at the two diagrams, can I give as to what is the fall in the water level or fall in tide? क्या होगी value of fall in tide? 8 minus x. 8 minus x will be the fall in the level for the vessel to sit overall, correct बेटा? Yes, sir. Yes. यहाँ डेप्थ 8 मीटर थी जब लाइट ग्राउंडिंग हुई, यहाँ उसी पॉइंट पे डेप्थ has become x meters when she sits overall. So what is the drop in level? Drop in level is 8 minus x, correct बेटा? Yes, sir. तो अगर मैं x कैलकुलेट कर लूं, the draft aft, what is x? X is the depth aft. What is this depth aft equal to? This depth aft is equal to draft aft. When? When she sits overall for the first time. So अगर मैं आफ ड्राफ्ट निकाल सकूं जब जहाज पूरा बैठेगा फर्स्ट टाइम, तो वो आफ ड्राफ्ट डेप्थ आफ्ट के बराबर होगा, और उस डेप्थ को अगर मैं 8 मीटर से माइनस कर दूं, तो आई विल गेट द फॉल इन लेवल फॉर द वेसल टू सिट ओवरऑल, करेक्ट बेटा? Yes, sir. That will be the answer to question number to the first part, A part of the question. बोलो ये डिस्कशन समझ में आ गया बेटा? क्योंकि आगे तो सॉल्यूशन दिखेगा, फिर वो डिस्कशन वहां तुम भूल जाओगे. Yes, sir. And whatever I have said is also documented here. You can see through these slides. First, please get the initial height draft. निकालो फटाफट initial height draft निकालो. जैसे ड्राफ्ट निकल जाए मुझे बता देना, I'll show you and you can match it.
Sir, high draft 6.373. 373, yes, 6.373. राइट बेटा, इट्स देयर ऑन द स्क्रीन। तुम इतने ही स्टेप लिखोगे बहुत है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सो हाई ड्राफ्ट विल बी ड्राफ्ट आफ्ट माइनस द करेक्शन 6.373। अब इस 6.373 के लिए अभी कुछ और चाहिए होगा तो बाद में इंटरपोलेट कर लेंगे, लेकिन जैसा हमें दिख रहा है वर्चुअल जीएम के लिए व्हाट वी नीड इज बेसिकली टीसी हमें मिल जाएगा और हमें एएफ और एमसीटीसी चाहिए। ठीक है, और चीजें चाहिए होंगी तो बाद में देख लेंगे, ये किसी और चीज के लिए चाहिए। अगर आपको करना है तो कर लो इसको, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द थर्ड पार्ट। ओके, सो कैन यू इंटरपोलेट ऑल दिस देन? D draft is 6.373, displacement for it, MCTC, AF, and this KM is basically required for the last part, C part. So KM is not required for part 1 and 2, but you can calculate this KM so that we don't have to come back again interpolating. हो जाएगा, मुझे बता देना, मैं दिखा दूंगा तुम्हें सारे इंटरपोलेटेड वैल्यूज। या ऐसा करो तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर ब्रेक, ये इंटरपोलेट भी कर लो, ठीक है, एंड यू कैन टेक अ ब्रेक, राइट बेटा? ओके सर। सर टेक अ वो ब्रेक। लास्ट वाली स्लाइड खोल के चले जाओगे सर, वो डायग्राम जो सिप वाले हैं ना, तो वो बना लेंगे हम। क्या क्या बनाना समझ लो, बनाने को तो ये बन जाएगा, उसमें क्या होगा। पहले तो ये देख लो इंटरपोलेट क्या करना है, नहीं तो फिर बोलोगे ये इंटरपोलेट क्या क्या वैल्यूज करना है, ये लिख लिया पहले? हाँ, लिख लिया सर। ओके, सो प्लीज इंटरपोलेट ऑल दीज एंड हियर इज दिस डायग्राम। चाय पी लो, वो टाइम नाउ इज 11:33, लेट्स कनेक्ट एट 11:50, 1150। ओके गाइस। ओके सर।
चलो भाई आ जाओ बच्चों। हाँ जी, डिड यू मैनेज टू इंटरपोलेट द वैल्यूज बेटा? हाँ जी क्लास, डिड यू मैनेज टू इंटरपोलेट बेटा? Yes, sir. I'm sure these must have been the values, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So as we have already discussed, when she sits overall for the first time, when she just sits overall, that means makes contact with the seabed all along her length from forward perpendicular to after perpendicular. You said that her initial trim of 3.2 meters by stern would reduce to 1 meter by stern, thus experiencing a change in trim of 2.2 meters by head. Am I right, guys? Yes, sir. So that means at that particular moment, if I have to find the upthrust experienced by the vessel's keel because of the grounding, then I can use the TC formula. I have MCTC, I have AF, and I have the trim change. So at the instant, so don't use the word critical instant. At the instant when vessel just sits over, because critical instant is a word which is typically for dry docks, not for grounding. Okay, so at the instant when she just sits overall, the trim of the vessel will reduce from 3.2 to 1 meter, and therefore the change in trim will be 220 centimeters. And using the TC formula, we can get the value of P at that point in time, and it comes to 544.4 tons. You can calculate and validate beta. And let me know if there is any problem in understanding this step. Yes, sir. 544 point. Very good. 4 tons. Very good. So once you get P, part B is not an issue. W minus P के लिए KM निकालोगे, minus kg minus FSC minus dry docking loss, and you'll get the GM at this point in time. That is part B of the question, which you can subsequently do. Now coming to part A. If you recall the diagram which was on display during the break, when she just sits overall, we know for sure that draft aft is X meters and depth aft is also X meters. Do you agree, beta? Yes, sir. Yes. Okay. Can you tell me anything about the vessel when she sits overall? Can you tell me anything about the trim that she may have and basically anything else that you may? Can I get her hydrostatic draft somehow at that point in time? When she just sits overall, can I get the hydrostatic draft? How can I get the hydrostatic draft? Think over it. If my vessel is displacing something and I discharge some weight from it, after discharging, if I have to get the hydrostatic draft, how do I get it better? सर उस टाइम पे आप ड्राफ्ट 8 मीटर, फॉरवर्ड 7 मीटर हो जाएगा। मैं हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। क्यों फॉरवर्ड 7 क्यों हो जाएगा और 8 क्यों हो जाएगा? अगर 8 ही रहेगा, 8 और 7 मतलब इतना तो ड्राफ्ट पहले भी नहीं था नहीं एंट्री सर, पे। Sir, initial पीछे वाला displacement तो 8 ही रहेगा minus P. सर, आगे वाला। हाँ जी, क्या कह रहे थे? Sir, initial displacement minus P करके जो displacement आएगी उसके लिए we will calculate hydrostatic draft.
Very good. Basically, what is P? P is something which has been virtually discharged, right? है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. आपको जहाज की डिस्प्लेसमेंट पता है, उसमें से कोई वेट वर्चुअली डिस्चार्ज हो गया है, तो बाकी का वेट बॉयंसी सपोर्ट कर रही है, तो उस वेट के लिए हम वी कैन फाइंड आउट द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ना W माइनस P के लिए, करेक्ट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सो इफ आई से कि W माइनस P के लिए जो ड्राफ्ट निकालोगे, ओके, सो फर्स्ट फाइंड आउट W माइनस P के लिए हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट. You will also need Km for part 2 of the question, and you also calculate AF. You will understand in a while why I am asking you to calculate AF. Jara please do find out these things. Density sea water, W minus P लिख के ड्राफ्ट AF और KM इंटरपोलेट कर लो. ड्राफ्ट कितना है बेटा? Anybody's got the draft? sir. 6.13. 6.133, sir. Okay, you can calculate the other ones also. There it's already on display. मैं ये देख रहा था कोई गलत तो नहीं कर रहे हो. 6.133 is the draft. Calculate AF and KM and validate. Yes, sir. Matching. AF and KM. Matching. Okay, very good beta. Anybody else who's still interpolating, let me know beta. साथ साथ करते चलो, और जितना इंटरपोलेट करोगे उतना आगे में कंफर्ट बढ़ेगा बेटा. ये मत कहो कि ये तो आता ही हमें, निकाल ही लेंगे वो, फिर दैट इज द अप्रोच व्हिच इज बेसिकली गोइंग टू लेट यू डाउन. ओके, so since nobody has said, I presume everybody's got the values then. Okay बेटा, मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि when the ship just sits overall, उस टाइम उसका हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट इज 6.133 meters. Do you agree? Yes, sir. Yes. Okay. Her AF is 71.377 meters as on the screen. You agree with that also? अगर इस डेटा को यूज करके, and something which is not part of this table but you already know but is on the screen somewhere, can I get the draft aft of the ship, aft draft of the ship, when she just sits overall? My question is, can I get the draft aft of the ship when she just sits overall based on whatever is available on the screen now? Yes.
क्या कैसे बेटा? So, aft component of trim 30A. ओके, व्हाट इज द ट्रिम? कौन कितनी ट्रिम का टी निकालोगे? You are absolutely. 2.2 sir. When the vessel sits overall, does she have a trim of 2.2 meters by stern? Does she have a trim of 2.2 meters when she sits overall? 1 meter by stern. तो बेटा अगर मैं कहूं कि जहाज का हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट 6.133 मीटर्स है, ट्रिम 1 मीटर बाय स्टर्न है और AF 71.377 मीटर्स है, तो फिर 1 मीटर यूज होगा ना ट्रिम बेटा? Yes sir, 1 meter. So can you find out the draft aft then? Yes, sir. कितना आया? And now you understand why AF was calculated here. This AF was calculated here again because we wanted to use the AF for this draft to get the draft aft. तो कितना आया बेटा? 140 is the length of MV Vijay. AF is 71.377. Trim is 1 meter by stern. Height draft is 6.133. Please find out the draft aft. Let me know as soon as you get the value बेटा. कुछ भी जो भी draft aft आएगा, I'll show it to you. 6.643 sir. 6.643 correct. एंड अभी हम जब ब्रेक से पहले डिस्कशन कर रहे थे एक्स वगैरह लेके, व्हाट वाज एक्स? एक्स वाज द ड्राफ्ट आफ्ट व्हेन शी सिट्स ओवरऑल, करेक्ट बेटा? अब इस 6.643 को याद करके लेट मी टेक यू बैक टू द डायग्राम. Do you agree the 6.643 is the value of the draft aft when she sits overall? Yes or no? Yes. Correct. And that value is equal to the depth aft, yes or no? Yes sir. X की वैल्यू आ गई ना 6.643, करेक्ट? Yes, sir. Correct. है ना? Depth draft aft is 6.643 when she sits overall. So that is DA. At that time, this is also equal to draft depth aft. So that means depth aft becomes 6.643. So the depth aft, when it reduces from 8 meters to 6.643, that is the time the ship will sit on the seabed completely. When the depth aft was 8 meters, light grounding took place. Only light contact was established. Further fall in level continued increasing the upthrust here. And when the depth aft came to 6.643 or whatever the value we got, at that time, the ship sits on the seabed completely. Yes or no? Correct, beta? Yes. So what is the fall in level then for the vessel to sit overall? 8 minus whatever 6.643 you got. That is the fall in level required for the vessel to sit overall, correct? Yes sir, 1.357. Okay, तो यहाँ तक मैंने कर दिया था. इस स्लाइड पे कुछ और पूछना है तो बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, एनीथिंग यू वांट टू चेक? अब ये AF क्यों कैलकुलेट किया था? नाउ यू कैन सी व्हाई AF वाज कैलकुलेटेड. ये KM क्यों कैलकुलेट किया है? क्योंकि ये पार्ट बी के लिए चाहिएगा, W माइनस P का KM चाहिएगा. So KM is 8.198. So this is how you'll start figuring out कि क्या क्या चीजें मुझे इंटरपोलेट करनी है. एक आधी चीज भूल जाओ दोबारा भी आ सकते हो, बट दैट विल कॉस्ट यू टाइम अननेसेसरली. सो अगर इफ वी कैन फिगर आउट क्या चाहिए हमें अपफ्रंट, सो दैट विल बेसिकली हेल्प इन सेविंग टाइम. सो नाउ द सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर. देखो, डेप्थ आफ्ट व्हेन वेसल रैन अग्राउंड लाइटली, पहली डायग्राम में, was equal to draft aft at that point of time and both were 8 meters. Do you agree with this statement which is on the screen?
करेक्ट? Yes. ऊपर वाली डायग्राम का लिखा है मैंने ये, ठीक है? Depth aft at critical instant, we don't use the word critical instant, ये वैसे मैंने शॉर्टकट मारने के लिए लिख दिया, at the instant when she sits overall will be equal to draft aft at critical instant was equal to x in the diagram, which has been calculated to 6.643 meters, right? Yes. So answer A, fall in water level required for the vessel to sit overall is 8 minus 6.643 equals to 1.357 meters. Does that make sense to you? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, अगर समझने में कोई समस्या है तो। क्लियर बेटा? Yes. Then we have to, second part is find the virtual GM at this point. अभी KM हमने निकाला था, उससे virtual GM निकालो, P तुम्हारे पास है, virtual GM निकालो। KM कौन सा यूज करोगे? W minus P का, वो KM कितना आया था? 8.198। Please find out the virtual GM, that will be answer to part B of the question. कितना आया बेटा? Virtual GM at the instant when she sits overall. हाँ जी, कितना आया बेटा? So 0.264. So 0.264 is the answer B, that is the virtual GM at the instant when the ship sits overall for the first time on the seabed. 0.264, is that right beta? Any questions on part B then? Part A हो गया, part B हो गया। No. Part C के लिए he says find the fall in level required for the vessel to become unstable. Okay, that is what the question says, third part. Beta, can we start part 3? Anybody has questions on part A, B? None? Very good. Now, part C of the question says, find the fall in level required for the vessel to become unstable. अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है कि मुझे क्या निकालना चाहिए to find the fall in level when the vessel becomes unstable.
based on whatever we have seen up to this point. What is it that I should be finding? Which parameter rather? Which parameter should I be calculating? अभी मुझे पार्ट बी में क्या निकालना था, पार्ट ए में क्या निकालना था? मुझे पार्ट ए में निकालना था फाइंड द फॉल इन लेवल रिक्वायर्ड फॉर द वेसल व्हेन द वेसल सिट्स ओवरऑल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसके लिए हमने क्या निकाला था बेटा टू गेट द आंसर? KM पार्ट केएम, पार्ट ए के लिए केएम निकाला था। सॉरी सर, वो नीचे नहीं निकाला था। मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा, पार्ट ए में हमने ये पता लगाना था कि what was the fall in level when the vessel sits overall. That was part A. That was the question in part A, yes or no? यस सर। तो वो फॉल इन लेवल निकालने के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया था इवेंचुअली, जिससे हमें फॉल इन लेवल मिला था उस पर्टिकुलर टाइम के लिए? स्क्रीन पे ही देख लो यार, कुछ बुद्धि लगा दो थोड़ी बहुत। उस टाइम डेप्थ कहाँ की? आप डेप्थ आफ्ट की कैलकुलेट की थी एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट? हाउ वी कैलकुलेटेड दैट डेप्थ, दैट्स अ सेकेंडरी, दैट विल गेट इनटू द थिंग लेटर। पहली बात तो मुझे क्या चाहिए थी? मुझे डेप्थ आफ्ट चाहिए थी, ताकि मैंने 8 से माइनस करके मुझे फॉल इन लेवल मिल गया था, करेक्ट बेटा? यस सर। ओके, हमने डेप्थ आफ्ट ही क्यों कंसिडर की थी? दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, ताकि आगे तुम इसको कंफ्यूज ना हो कभी। डेप्थ आफ्ट इसलिए की थी बिकॉज आफ्ट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फर्स्ट कांटेक्ट हुआ था, और वहां पर हमें पता है कांटेक्ट के बाद डेप्थ और ड्राफ्ट साथ में चेंज होंगे। फॉरवर्ड कब टच हुआ, कब टच होगा, वो अपने आप होता रहेगा। बट जहां कांटेक्ट पहले हो गया, अगर वो कांटेक्ट फॉरवर्ड में फर्स्ट होता, देन वी वुड हैव बीन डीलिंग विद द फॉरवर्ड पॉइंट। सो जो पॉइंट ऑफ फर्स्ट कांटेक्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज वन पॉइंट जिसमें हमेशा कांटेक्ट के बाद, एक्चुअली हर पॉइंट पे होगा, बट वहां पे क्योंकि कांटेक्ट फर्स्ट हुआ है, तो जैसे ही कांटेक्ट हुआ उसके बाद उस पॉइंट पे तो हमें पक्का पता है कि डेप्थ और ड्राफ्ट बराबर रहेंगे। अगर दोनों में से एक चीज पता है तो दूसरी उसके बराबर ही होगी, राइट बेटा? यस। इसका मतलब अब क्या हुआ? इसका मतलब मुझे जब वेसल अनस्टेबल होगा उस टाइम का मुझे ड्राफ्ट आफ्ट चाहिए, करेक्ट बेटा? यस। और उसको अगर 8 से माइनस कर दूंगा तो मुझे फॉल इन लेवल मिल जाएगा। यस सर। अब ड्राफ्ट आफ्ट हमने कैसे निकाला था? हमने पहले अभी पार्ट ए में जब पूरा बैठा था तो उसका पी निकाला था। अब हमें पी कब का निकालना पड़ेगा? जब वेसल अनस्टेबल होगा, करेक्ट बेटा? यस। है ना? हमने ये 6.643 के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया था? हमने पहले इस टाइम पी निकाला, फिर W माइनस पी के लिए हाई ड्राफ्ट निकाला, W माइनस पी के लिए AF निकाला, उस टाइम की ट्रिम असेस की, और उस ट्रिम को TA में स्प्लिट करके TA हमने हाई ड्राफ्ट पे निकाल दिया था, उससे हमारा 6.643 आया था, करेक्ट बेटा? यस। अब यही चीज, यही डेप्थ मुझे पूरे बैठने के टाइम की नहीं चाहिए, ये डेप्थ मुझे चाहिए जब जहाज अनस्टेबल होगा। तो इसका मतलब फॉल इन लेवल उस टाइम चाहिए, तो मुझे उस टाइम की डेप्थ चाहिए। उस टाइम की डेप्थ जो है वो आफ्ट के ड्राफ्ट के बराबर होगी। डेप्थ आफ्ट विल बी इक्वल टू ड्राफ्ट आफ्ट बिकॉज दैट इज आफ्टर द कांटेक्ट हैज बीन मेड, करेक्ट बेटा? यस। तो ड्राफ्ट आफ्ट उस टाइम कैसे निकालेंगे हम? उसके लिए मेरे को उस टाइम का हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट होना चाहिए, उस टाइम का AF होना चाहिए, करेक्ट बेटा? यस। और हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कैसे निकालेंगे, AF कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे उस टाइम का हमारे पास P होना चाहिए, अप थ्रस्ट होनी चाहिए, जिसको कि मैं W माइनस P से निकाल के हाई ड्राफ्ट निकाल सकूं, राइट? इट इज द रिपीट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, राइट बेटा? यस। Getting the draft aft when she becomes unstable
which in turn gives me the depth aft at that point in time, is nothing else but repeat of part A. पार्ट ए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए था, पार्ट सी में वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं दूसरे मोमेंट के लिए। दूसरा मोमेंट कब है? जब जहाज अनस्टेबल हुआ, राइट बेटा? Yes. मतलब किस टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा पैरामीटर चेंज हो गया, बट कैलकुलेट तो वही चीज करनी है ना, बट इस टाइम की, टाइम एक्स की नहीं, टाइम वाई के लिए कैलकुलेट करनी है। पर प्रोसीजर तो वाई के लिए भी वही रहेगा ना बेटा, पैरामीटर्स वुड चेंज, करेक्ट? Yes, sir. Procedure is. करेक्ट। इसका मतलब नाउ इट बॉइल्स डाउन टू गेटिंग पी एट द टाइम व्हेन शी बिकम्स अनस्टेबल, करेक्ट बेटा? पी निकलेगा तो फिर तुम पार्ट ए की तरह रिपीट कर दोगे, ठीक है? Yes. वे अगर कोई कहता है मेरा शिप अनस्टेबल होगा, तो वो किस पैरामीटर पे हम कहते हैं स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, किस पे करते हैं? विच इज द पैरामीटर ऑन विच वी से वेदर शिप इज GM. स्टेबल और अन? जीएम पे, शाबाश। कौन सा जीएम? जीएम फ्लूइड, ओके। अब ये बताओ बेटा मेरे को कि अगेन मैं, मेरे पास इनिशियल में मेरे शिप के पास कोई जी केएम है, उसमें से शिप की केजी माइनस करूंगा तो मेरे पास एक जीएम आ जाएगा। नाउ गो रिकॉल द क्वेश्चन नंबर 4 जो ट्रिम वाला था। अगर मेरे पास जीएम है शुरू में, अगर मैं उस पूरे जीएम को लूज कर दूं तो ये जीएम का लॉस विल बी ऑन टू अकाउंट्स, एक तो एफएससी और एक वर्चुअल लॉस बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग, करेक्ट? वो Yes. मैक्सिमम ट्रिम वाला क्वेश्चन याद करो, ठीक है? तो ये जो पी निकालेंगे हम उस मेथड से इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये शुरू वाला टेबल है जो 6.673 6.373 तुमने हाइट ड्राफ्ट निकाला था, जब मैंने आपको कहा था ये के एम पार्ट सी के लिए हम लिख रहे हैं, याद है? ये बाकी चीजें तो तुमने यूज भी कर ली हैं पहले, बट के एम इफ रिमेंबर आई टोल्ड यू विल बी नीडिंग इट फॉर पार्ट सी, राइट गाइस? Yes, sir. तो नाउ यू सी in the km of the ship is 8.142, kg of the ship is 7.5, this gives us a gm of 0.642। अब gm को जीरो कर देंगे तो नेचुरली उसके बाद शिप नेगेटिव जीएम में चला जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा, तो वी ऑब्वियसली विल वर्क फॉर जीएम जीरो। सो फॉर द शिप टू बिकम अनस्टेबल what we have to make is the gm zero, that means I can afford to lose 0.642। उस क्वेश्चन में 0.266 मीटर लूज किया था, इसमें वी हैव टू लूज द कंप्लीट थिंग 0.642 meters। दिस 0.642 meters will be lost on account of FSC and virtual loss, और ये डालेंगे तो दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ P which will make me lose GM of 0.642। ये देखो बेटा, ये दोबारा से रिपीट हुई है चीज, लेकिन अब ये बताओ ये समझ में आ गई है या कोई डाउट है इसमें, कोई डिस्कशन चाहिए? बोलो बच्चों। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस स्लाइड? अगर नहीं पूछोगे तो मैं आगे चला जाऊंगा, देन अगर कोई डाउट है तो पूछो इस पे। Please, वो just calculate कर दो. हाँ, क्या नहीं, कैलकुलेट कर लो पहले, कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर है तो कैलकुलेट कर लो, टेक योर टाइम।
क्लियर बेटा? Yes. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे पानी का लेवल गिरता जाएगा ग्राउंडिंग के बाद, जैसे जैसे लेवल गिरेगा, पहले जब डेप्थ आफ्ट में 8 मीटर आएगी तो लाइट कांटेक्ट वुड बी मेड, ठीक है, विद अप थ्रस्ट ऑफ 0। उसके बाद जैसे जैसे लेवल और ड्रॉप होता जाएगा, जब ये लेवल 6.643 पे आएगा तो जहाज पूरा का पूरा फर्स्ट टाइम बैठ जाएगा, विच वी सॉ इन पार्ट ए, राइट बेटा? और वहां पर इसके पास अभी भी रेजिडुअल जीएम पॉजिटिव था। अब शिप का लेवल और पानी का लेवल और नीचे ड्रॉप होता जाएगा और नीचे ड्रॉप होता जाएगा, शिप पूरा बैठ चुका है, दैट्स फाइन। नाउ द ट्रिम वुड नॉट चेंज फ्रॉम 1 मीटर, बिकॉज एक बार बैठने के बाद 1 मीटर ही रहेगा। अब और जैसे जैसे लेवल गिरता जाएगा, अप थ्रस्ट और बढ़ता जाएगा, वो अलग बात है कि अप थ्रस्ट विल बी एक्टिंग ऑल अलोंग द लेंथ एंड विल नॉट बी एक्टिंग ओनली एट आफ्ट परपेंडिकुलर, बिकॉज नाउ शी इज सिटिंग completely. Any further fall in level will keep increasing the upthrust. As the upthrust increases, the virtual loss will change, FSC would change, and the total loss would continue increasing. As this loss increases and becomes equal to 0.642, the GM would become 0, and that is where the vessel will basically go out of the stable equilibrium. Of course, 0 is neither positive nor negative, and thereafter she'll slip into unstable equilibrium. Correct, beta? Yes. And at that point in time, her upthrust would be 862.9 tons. P would be 862.9 tons. So when upthrust is 862.9 tons, अगर मुझे उस टाइम में ड्राफ्ट आफ्ट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? जब अपथ्रस्ट 862.9 टन हो और मुझे ड्राफ्ट आफ्ट निकालना हो तो हाउ विल आई फाइंड इट? What is the procedure I can find to find the draft aft at that point? Sir, ये displacement से will subtract P and will So get the hydrostatic draft. hydrostatic draft, and we'll get the AF for that time, correct? Yes, sir. AF will get. And what else we need to get the draft aft? The trim of the ship, right? Trim. What will Yes. be the trim? What will be the trim of the ship? 1 meter by stern, right? Because बैठने के बाद तो it will remain 1 meter only, na? Yes, Because sir. Because of the seabed. Yes. correct. So you can find out the draft aft. Please do that. Yes. Okay. Here is the solution on the screen. You can see it, calculate it, understand it, and let me know. मैंने सारा इसलिए दिखा दिया because मेरी animation उल्टी सीधी हो रखी है इसकी. So that's why I said let me put up everything in one go. You can see this and let me know if there's any challenge.
हाँ जी बेटा, कुछ पूछना था पूछो इसमें मुझसे। इज इट क्लियर बेटा? Yes. आज का मेरा टारगेट तो एक्चुअली 10th क्वेश्चन था। वी स्टिल हैव 15 मिनट्स, बट I just want to give you time to grasp whatever we have done up to now. So we have effectively done only 4 questions, 2, 4, 6 and 8. Based on your individual requirements, how much have you learned, how much you feel comfortable with logic, please review these questions, and if you have any doubts, you let me know at the beginning of the class next time. क्योंकि मुझे आज वैसे टारगेट 10th भी था, 15 मिनट बचे हुए हैं, but I just don't want it to be just pushed over without any time for you to understand. So ये जितने कॉन्सेप्ट हमारे इन 4 क्वेश्चंस में सम आए हैं, इनको विद लॉजिक प्लीज ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ देम over the weekend. Let me know if you have any concerns, and then we can continue with the exercise. Is that okay, guys? Yes. Yes, sir. So we still have 15 minutes, but we can close out the class unless you have any doubts from earlier papers or something. If you want to discuss anything, you can discuss that. As far as dry docking and grounding is concerned, we can take a break for the day here. This is where we'll start the next time then. Okay, I'm still on the shared screen. Any questions that you may have from the earlier papers or something that you may want to ask, or anything related to dry docking that we have covered until this point, which needs to be discussed, because we still have some time so we can use it. नहीं तो बहुत बढ़िया. Then you can log out, leave the class, no issues. I am signing out because if there are no doubts, then there's no point in just remaining logged in, guys. Okay, beta, then see you maybe in the next class then. Bye. Okay. Thank you, sir. Bye, bye, beta, bye.